Hello everyone, welcome to my channel Maths Gel. I am Santosh Panigrahi, a mathematics educator from Rotla, Odisha. Here in this channel, I am teaching mathematics IIT Main advanced level. So students, one video I have already given, and in the last video I started complex number, and in complex number the first topic was about iota, and concerning those theories I had given last classes, students, I'll give some questions for IIT Main and advanced level on that. So students, first question of today. Find the value of summation n equal to 0 to 100 I to the n factorial. So how to solve this? So student, summation means you know what is summation? Summation means plus. Summation AR means what? R equal to 0 to 100 means A0 plus A1 plus A2 up to A100. For R value 0, then 1, then 2, up to 100 will take. So this is the meaning of summation. And one symbol also there, R equal to 0 to 5 suppose is there, and this symbol is pi, and this is called product of. So what is the meaning AR? So A0, first we are taking 0, then 1, A1, then A2, then A3, then A4, then A5, and these all terms will multiply. This is the product. Okay students, now come to this question. Summation uh, I to the power n factorial. Okay, so find the value of summation n equal to 0 to 100 factorial. This means what? Summation n equal to 0 to 100 I to the power n factorial. Sorry, what is the meaning of this? Meaning of this is I to the power 0 factorial plus I to the power 1 factorial plus I to the power 2 factorial plus I to the power 3 factorial plus, now we can write like this, n equal to 4. Now up to 3 factorial we have written, and n equal to 4 to 100 I to the power r. I to the power n factorial, not r, this is n factorial. Okay, so in place of n, we have written 0, again 1, then 2, then 3, up to 100 we should write. So I to the power 0 factorial means I to the power 1. I to the 1 factorial means also I to the power 1. Plus I to the 2 factorial means I square. I to the 3 factorial means, you know, 3 into 2, 6. I to the power 6. Plus, here students, from 4 to 100, how many terms are there in addition form? How many terms are there? I to the power 4 factorial plus I to the power 5 factorial up to I to the power 100 factorial. So how many terms are there? From 4 to 100. 4 to 100. How many numbers are there? 100 minus 4 plus 1. That means 97 number of terms are there. So student, here 97 terms are there, 97 number of terms are there. So either 4 factorial means what? This is 1. Either 5 factorial means what? That is also 1. Of to last one, either 100 factorial means what? That is also 1. How? I to the power 4 factorial is 1 because I to the power 4 factorial means 4 into 3 into 2 into 1. Last video we had discussed, if I to the power 4 into something, that means it's 1. I to the 5 factorial means what? I to the power 5 into 4 into 3 to 1 means 4 into
5, 3, 2, 1. So students, if 4 into something is there in power, then answer is 1. So add the 4 factorial is 1, add the 5 factorial is 1, or 2, add the 100 factorial, all are 1, 1 each. So total 97 1 are there. So 97 into 1, that is 97. After this, okay, so this value is 97. So now after that, equal to I plus I, 2I, I square is minus 1. I to the 6 means add the 4 plus 2. That means this is also I square means minus 1 plus 97. So 97 minus 2, 95. 95 plus 2I. So students, first question solved. Now students come to next question. Sorry. So students come to next question. Second question of today. Is the following computation correct? Root minus 2 into root minus 3 equal to root over minus 2 root over minus 3 equal to root 6. In last video students, I had already discussed you that root AB equal to square root of A into square root of B. It is correct only if A at least one of A and B is non-negative. It is correct, but condition is this: at least one of A and B is non-negative. But here you can see here minus 2 negative value and minus 3 also negative. Here A and B both are negative. So students, in this case, this rule cannot work. So we'll write not correct. Actually, what is its exact value? What is its correct value? So correct value will be root over minus 2 into root over minus 3. That means we can write minus root over, students, last video I have written root over AB equal to root A root B. Okay, we have written root over AB equal to minus root over mod A mod B. This formula we can apply if A is less than 0 and B is less than 0. A is less than 0 and B is less than 0. Both are less than 0. Both are negative. Here both are negative. So we should apply this formula. So minus 2 mod, minus 3 mod. So minus of root over minus 2 mod is 2 and modulus of minus 3 is 3. So minus root 6. So answer will be minus root over 6. Also in other process also we can do this. Root over minus 2 means root 2i and root over minus 3 is root 3i. So root 2 into root 3 is root 2 into root 3 into I square. Now root 2 and root 3 both are positive number. So here we can apply root over AB. 2 into 3. I square means minus 1. So answer is minus root 6. So in this way we solve this problem. Next question, students. Okay. Here question is also on iota. If A less than 0 and B greater than 0 means A is negative and B is positive, the root A root B is equal to what? Minus root over mod AB. Root over mod A into B. Root over mod A into B. Here these two are same thing. So
root minus root mod a b, root mod a into b, root mod a into b. We'll write mod a into mod b and minus symbol. Okay, so now choices are right. Minus root over mod a into b, square root of mod a into b, minus square root of mod a into mod b. Now we will discuss a less than 0. Suppose a we have taken minus 9 because less than 0. B suppose you take 4. So a negative and b positive. So now what is the value of root a root b? Root a into root b. If one formula we have discussed, also just discussed, that if at least one is non-negative, here one is non-negative, then we can easily write root over a b. So ऐसा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्मूला को इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, रूट ए भी वी कैन राइट. सो रूट ओवर -9 into 4. So root over -94 minus 36. 36 root over is 6 and root over -1 is I. So 6I is the answer. चलो अभी जो चॉइसेस है, 3 चॉइसेस है, इस 3 चॉइसेस में हम लोग देख लेते हैं कौन सा आंसर सही होगा. So come to first choice, minus square root of mod A into B minus square root of mod of -9 is +9 and 4. 9 into 4 36 minus 6. This answer is correct? No. This answer is not correct. Okay. Second answer, root over mod A into B. Okay. Second bit, for bit B, square root of -9 modulus into B. B means 4. Root over -9 modulus 9 into 4. 9 over 36, root over is 6. This is also not correct. Bit C. Bit C, minus square root of -9 modulus 4 modulus equal to minus square root of -9 modulus is 9 and 4 modulus is 4 minus root over 36 means -6. It is also incorrect. So this option should not be like this. This option should be root over mod A. No, not mod A. It is very easy thing. Simply we write AB. Actually, this is the answer because root AB means root over. This is not correct. Bit C, for bit C, I am solving here. Root over -9 into 4 equal to square root of -36 equal to 36 come to outside root over -1. So this will be 6I. So students, bit C is the correct answer here. If here in place of this, if this would be like root over A into mod B, also it is also correct. This is correct and this is also correct because root over -9 into 4 modulus, that is root over -36 means this is also 6I. So student, bit C is the correct. Also bit C can be written like this. So students, I hope you all got the point. So students, come to next questions. Find the value of I to the power r equal to 1 to
4n plus 7. So how to solve this? Summation r equal to 1 to 4n plus 7 I to the power r is equal to, here students simple question is, from 1 to 4n plus 7 how many numbers are there? Or 4n plus 7 numbers are there, simply 4n plus 7 numbers are there. But if you write this as like this, I to the power 1 plus I to the power 2 plus I to the power 3 plus summation r equal to 4 to 4n plus 7 I to the power r, then what will happen? I to the power 1 is I square is minus 1, I cube is minus I, plus, here I cancelled, plus summation r equal to 4 to 4n plus 4 and I to the power r plus I to the power, no student, one easy method is there for solving this. Very easy method is there. Just explaining on that. Sum plus dot out to last term is I to the power 4n plus 7. Directly you write. Can you say me here total number of terms of 4n plus 7? If I plus I square plus I cube. Okay. After that, from 4n plus 7 can be written 4n plus 4 plus 3. Okay. 4n plus 4 plus 3. So 3 terms are extra. मेरे कहने का मतलब ये है 3 terms extra means what? 3 terms extra means 4n plus 4. अगर हम लोग 4n plus 4 तक लिखते हैं तो अगर हम लोग 4n plus 4 तक लिखते हैं तो 0 हो जाएगा और 3 टर्म एक्स्ट्रा बच जाएगा. तो हम एक काम करते हैं, लास्ट में आई टू द पावर 4n plus 4 लिखते हैं, आई टू द पावर 4n plus 5, इस तरह से आई टू द पावर I to the power 4n plus 6 plus I to the power 4n plus 7. इसी तरीका ये है कि लास्ट से हम लोग चारों का जोड़ी बनाना शुरू कर देंगे. 4 पेयर्स, 1 2 3 4, इस तरह से अगर हम लोग बनाने जाएंगे तो I to the power 4 तक सारे 4 पेयर्स हमें मिल जाएंगे. ओके, फ्रॉम 4 टू 4n plus 7, क्योंकि अगर हम लोग 1 से 4n plus 7 तक हम लोग जाते हैं, इसका मतलब क्या है कि फ्रॉम 1 टू 4n plus 7, 1 टू 4n plus 4, फिर 4n plus 5, फिर 4n plus 6, फिर 4n plus 7, 4 5 6 7. तो ये 3 जो टर्म्स है, ये तीनों टर्म को छोड़ के बाकी सब तो 0 हो जाएगा फर्स्ट से. तो हम लोग एक काम करते हैं, फर्स्ट से शुरू नहीं करके लास्ट से शुरुआत करते हैं, तो हमें सीधा सीधा इजिस्ट प्रोसेस में दिख जाएगा. मैं आप लोगों को समझा रहा हूं इसीलिए लेट हो रहा है, अदरवाइज ये आप लोग इजीली कर पाओगे. ये तीनों ही सिर्फ बच जाएगा i -1, i क्यूब मीन्स माइनस i, सो माइनस i प्लस i कैंसल, आंसर इज -1. या अगर कोई इस तरह से सॉल्व किया, फर्स्ट से यहां तक सॉल्व किया, यहां तक कोई सॉल्व किया जो कि हो गया 0, तो लास्ट में बच गया i टू द पावर 4n plus 5 प्लस i टू द पावर 4n plus 6 प्लस i टू द पावर 4n plus 7. ऐसा भी हो जाएगा, लेकिन जो प्रोसेस मैंने बताया वो इससे इजियर है.
सो इसको कैसे लिखेंगे, आई टू द पावर 4 n तो ऐसे गायब हो जाएगा, 5 बच जाएगा, आई टू द पावर 6 प्लस आई टू द पावर 7. तो आई टू द पावर 5 मीन्स व्हाट, आई टू द पावर 1, आई टू द 6 मीन्स व्हाट, आई स्क्वायर, बिकॉज 4 प्लस 2, हमें 6 को मेंटली कैलकुलेट कर देना है कि ये 4 प्लस 2 है, एंड आई टू द पावर 7 मीन्स व्हाट, 4 प्लस 3, सो आई टू द पावर ओनली 3. So बस I minus 1 minus I, so answer is minus 1. So we have solved this problem. So should come to next question. The value of this is dash. So how to find out its answer? 1 plus 3 plus 5 plus up to 2n plus 1. In sequence 1 3, फिर 1 3 5 7 इस तरह से लास्ट वाला टर्म 2n प्लस 1 हो जाएगा. सो 0 से हम लोग अगर करेंगे तो लास्ट वाला टर्म को क्या करेंगे, लास्ट वाला टर्म 10 ही रहेगा, तभी तो लास्ट वाला टर्म जो है वो n रहेगा. सो 2n प्लस 1. सो फर्स्ट वाला जो वैल्यू 1 है वो किस तरह आया, ये फर्स्ट वाला जो 1 है वो आया 2 इंटू 0 प्लस 1. सेकेंड वाला वैल्यू 2 इंटू 0 सॉरी 2 इंटू 1 प्लस 1. थर्ड वाला वैल्यू आएगा 2 इंटू 2 प्लस 1. इस तरह से फर्स्ट वैल्यू 0 फिर 1 फिर 2 अप टू n तक आएगा. तो 1 से 2 तक, जो 1 से 2 तक है, 1 से n तक जो है दैट इज n नंबर्स एंड 0 जुड़ के एक्स्ट्रा, तो n प्लस 1 नंबर्स आर देयर. सो स्टूडेंट्स 1 से 2n प्लस 1 तक n प्लस 1 नंबर्स है. आई होप यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस. टोटल नंबर्स कितने हैं ये पाने के लिए ये वाला टेक्निक हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. इसको छोड़कर और भी टेक्निक्स हम लोग यूज कर सकते हैं जो कि इन जनरल हम लोगों ने एपी में पढ़ा है. जो मैनुअल टेक्निक है वो ऐसा है कि फर्स्ट टर्म क्या हो गया 1, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 2 क्योंकि ये एपी है, और nth टर्म क्या हो जाएगा 2n प्लस 1. अब यहाँ पे n नहीं r लिखते हैं क्योंकि rth टर्म, तो r का वैल्यू हम लोग निकालेंगे n फॉर्म में. So r term is a plus r minus 1 into d equal to 2n plus 1. But a is the 1. R minus 1 common difference is 2 equal to 2n plus 1. So 1 1 cancel and 2 2 also here cancel. R minus 1 equal to n. So r equal to n plus 1. तो ये एक मैनुअल प्रोसेस है, इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं कि टोटल टर्म्स है n plus 1. So 1 plus 3 plus 5 up to 2n plus 1 हम लोग करना चाहते हैं. इतना एडिशन हम लोग किस तरह करेंगे, रूल इज देयर कि टोटल नंबर ऑफ टर्म डिवाइडेड बाय 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. ये हम लोगों ने क्लास 10 में भी पढ़ा है. सो n प्लस 1 बाय 2 इनटू 2n प्लस 2. सो n प्लस 1 इनटू 2n प्लस 2 से 2 कॉमन चला जाएगा तो n प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय 2 टू कैंसिल, सो n प्लस 1 होल स्क्वायर. सो स्टूडेंट्स ये जो पावर है इसे हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि n प्लस 1 का होल स्क्वायर. So I to the power 1 plus 3 plus 2n plus 1 is equal to I to the power n plus 1 whole square. So I to the power n plus 1 whole square को हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे, I to the power n plus 1 whole square जो है इसे हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे, बस इतना ही क्वेश्चन दे दिया. अब n क्या हो सकता है, ऑड हो सकता है, नहीं तो इवन हो सकता है. तो हम लोग देखेंगे अगर हम लोग ऑड ले लेंगे, अगर n इज ऑड, कोई भी ऑर्डर नंबर हम लोग साइड में लेके देख लेते हैं. n प्लस 1 होल स्क्वायर, अगर फंक्शन ऐसा हो गया n प्लस 1 होल स्क्वायर, मान लिया कि fn इक्वल टू n प्लस 1 होल स्क्वायर. ओके, मान लिया कि f ऑफ n इक्वल टू n प्लस 1 होल स्क्वायर. अगर n का वैल्यू 1 लेते हैं, n का वैल्यू 3 लेते हैं, चलो हम लोग n का वैल्यू 2 लेते हैं, n का वैल्यू 3 लेते हैं, n का वैल्यू 4 लेते हैं, n का वैल्यू 5 लेंगे. तो जब n का वैल्यू 1 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा n प्लस 1 होल स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर मीन्स 4, और 2 लेंगे तो 3 स्क्वायर दैट इज 9. If we'll take 3, n value 3 sorry n value 3, so 3 plus 1 4 square that is 16, and 4 लेंगे 5 square 25, 5 plus 1 6 square 36. so I to the power n plus 1 whole square के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, I to the power n plus 1 whole square जब लिखेंगे क्या, I to the power 4 लिखेंगे जो कि 1, और I to the power 9 लिखेंगे जो कि I to the power 8 into I, 8 तो 4 का मल्टीपल है तो I रहेगा. I का पावर 16 को क्या लिखेंगे जो कि 4 का मल्टीपल है तो 1 रहेगा. I का 25 मतलब 4 into 24, 4 का मल्टीपल है, 4 6 24,
प्लस 1, सो आई रहेगा। तो इस तरह से यू विल सी इफ n इज ऑड, इफ n इज ऑड मतलब n का वैल्यू अगर 1 लेंगे, n का वैल्यू 3 लेंगे, n का वैल्यू 5 लेंगे, सो आंसर्स आर 1 1, सो आंसर इज 1। अगर हम लोग ऑड लेंगे, ऑड नंबर अगर लेते हैं तो आंसर जो है वो क्या आ रहा है, अगर n हम लोग ऑड नंबर लेते हैं 1 लेते हैं तो 8 4 तो 1 ही आ रहा है। ओके, सो इफ n इज इवन, अगर इवन वैल्यू लेते हैं जिसको 2 लिया तो 2 लिया तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर 9, 9 हो तो 8 9, दैट इज i। सो स्टूडेंट्स i टू द पावर 1 मींस i। सो ऐसे दो आंसर्स होंगे, इसको केस 1 केस 2 भी बोला जा सकता है, केस 1 और केस 2 ऐसे बोला सकता है। सो दिस क्वेश्चन आंसर इज दिस। Okay, so I hope you understood this question. So students, come to next question. Today's next question is, if x and y are complex numbers, then the system of equations 1 plus ix plus 1 minus iy equal to 1 and 2ix plus 2y equal to 1 plus I has unique solution, no solution, infinite, many solution, none of which. So for infinite solution हम लोग try करते हैं। So 1 plus I divided by 2i, so coefficient of x and here also coefficient of x हम लोग देख लेंगे, equal to 1 minus I divided by 2। ये सबसे इजी प्रोसेस है इनफाइनाइट सॉल्यूशन देखने के लिए। बाई चांस अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया तो और कोई चीज चेक नहीं करेंगे, नहीं तो हम लोग को तो सॉल्यूशन सॉल्विंग तो आता ही है, एक्स और वाई को एलिमिनेशन मेथड में सॉल्विंग तो आता ही है, उसे कर सकते हैं हम लोग बाकी दोनों के लिए। सो थर्ड वन इज माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई। अब हम लोग देखेंगे ये तीनों इक्वल है क्या या नॉट इक्वल है। अगर तीनों के तीनों इक्वल हो गया तो इसका मतलब हम लोग का इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। सो पहले इसको चेक करेंगे, फिर यूनिक, फिर नॉन सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं। पहले इसी को चेक कर लेते हैं। सो 1 प्लस आई बाई 2y, नीचे में आई नहीं रखेंगे, यू नो इन कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे में आई नहीं रख सकते, तो ऊपर में आई मल्टीप्लाई कर लो, आई प्लस आई स्क्वायर तो -1, तो डिवाइडेड बाय नीचे में अगर आई मल्टीप्लाई किया तो 2 आई स्क्वायर। तो ये फर्स्ट वाला को हम लोग पहले सॉल्व करें, ठीक है। सो आई माइनस 1 डिवाइडेड बाय -2, इसे हम लोग 1 माइनस आई बाई 2 भी लिख सकते हैं, जो कि सेकंड वाला में दिया है, उसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। अब थर्ड वाला को हम लोग देखते हैं, क्योंकि इसको तो सॉल्व करने की नेसेसरी है बिकॉज इसमें नीचे में 1 प्लस आई है और नीचे में अगर 1 प्लस आई है तो इसको सॉल्व करने का टेक्निक क्या है कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देंगे 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई और ऊपर में 1 इंटू 1 माइनस आई, जो नीचे में मल्टीप्लाई किया ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो नीचे में क्या मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सो इसका कंजुगेट को मल्टीप्लाई किया, मतलब a प्लस बी है तो a माइनस बी को मल्टीप्लाई किया। कंजुगेट वर्ड के बारे में हम पढ़ेंगे, बट इसका 1 प्लस आई में 1 प्लस आई मल्टीप्लाई करेंगे, वाई बिकॉज a प्लस बी में a माइनस बी हम लोग मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाता है और बी स्क्वायर आ जाता है आई का स्क्वायर आ जाएगा, जो आई का स्क्वायर अगर आ जाएगा तो डिनोमिनेटर इज रियल हो जाएगा। सो नाउ 1 माइनस आई स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर 1 माइनस आई इज देयर, numerator 1 minus I and denominator 1 minus minus 1 means 1 plus 1, so 1 minus I by 2। so यहाँ पे भी आंसर 1 minus I by 2, 1 minus I by 2, 1 minus I by 2 means ratios of x coefficients, y coefficients and the constants are equal। so हम लोग इसे ये कह सकते हैं कि this is infinite many solutions। अगर infinite many solutions, infinite number of solutions ये रिजेक्ट हो जाता है तो यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशंस के लिए हम लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। Okay, students, come to next questions. Okay, students. Okay, come to next question. This is also advanced type question. So consider the equation 10z square minus 3iz minus k equal to 0. Okay. एक quadratic equation given है, where इस quadratic equation z form में given है, complex quadratic equation, चलो ठीक है, complex type quadratic equation given है, where z is a complex variable and I square equal to -1, which of the following statement is true। so एक एक करके हम लोग चेक करते हैं।
फॉर रियल पॉजिटिव नंबर के, पहले बिट ए को चेक करते हैं, यहाँ पे चारों चेक करना पड़ेगा, बट आंसर इज नॉट मल्टीपल टाइप, आंसर इज ओनली वन, आंसर इज करेक्ट। सो फॉर रियल पॉजिटिव नंबर के, सो के का कोई पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, बिट ए सॉल्विंग के लिए हम लोग के का वैल्यू सपोज 1 हम लोग लेंगे, लेकिन ये जो क्वाड्रेटिक को सॉल्व हम लोग क्वाड्रेटिक तरीके से करते हैं, पहले तो 10z² माइनस 3iz माइनस के इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे टेक्निकल z इक्वल टू वो यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 3i² माइनस 4 इंटू ac 10 इंटू, so minus 3i square minus 4 into a means 10 and c means minus k divided by 2 into a. So next minus into minus 3i, that is 3i plus minus square root of minus 3 square is 9, I square is minus 1, so minus 9. Here minus k is there, minus minus plus, plus 4 into 10, 40 k divided by 10 into 2, that is 20. Okay students, here discriminant is what? Inside the square root value minus 9 plus 40k. This is the discriminant. Now we discuss on this discriminant. We are putting the values k equal to anything on the discriminant. Then we can observe what is the nature of the quadratic equation. So first bit is for real positive number k. Suppose मान लिया k को 1 ले लिया. So both roots are purely imaginary, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखते हैं। अगर k को if k value 1, we take k value 1, then minus 9 plus 40 into k means 40. 40 minus 9 is what? 40 minus 9 is 31. So discriminant is 31. The discriminant is greater than 0. If greater than 0, तो आंसर तो हमेशा रियल आएगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आएगा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 तो रियल रूट्स आता है और 2 रूट्स आते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, सो यूनिक रूट। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, तब भी 2 इमेजिनरी रूट्स विल कम। चलो ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि बिट ए को जो सॉल्व किया तो ये जो आंसर है ये फॉल्स, तो बिट ए इज फॉल्स। ये हम लोगों ने चेक कर दिया कि बिट ए जो है दैट इज फॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, कम टू बिट बी फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स के neither root is real. So students, for bit b, one work will do, one thing we have to do. What is that? For all complex numbers k, suppose we'll take 0. All complex numbers means 0 is also a complex number. Can you tell me 0 is a complex number or not? Yes, it is a complex number. Okay, can you tell me whether it is purely real or purely imaginary? This may be purely real, this may be purely imaginary. Okay, so ऐसा कहीं में पूछा नहीं जाता, लेकिन ये प्योरली रियल भी कह सकते हैं, प्योरली इमेजिनरी भी कह सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि प्योरली रियल क्या होता है? प्योरली रियल कब होता है? जिसका रियल पार्ट जो है वो रहेगा बट इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा। बट प्योरली इमेजिनरी क्या होगा? जब रियल पार्ट 0 हो जाएगा तब प्योरली इमेजिनरी होगा। उसके बारे में डिस्कस हम लोग करेंगे। छोड़ो, जब ये हम लोग k का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, ठीक है, k का वैल्यू हम लोग 0 पुट कर देते हैं और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद बात क्या जा रहा है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा बताओ? -9 प्लस 40 इंटू 0, सो दैट विल -9। अब -9 का रूट ओवर क्या हो जाएगा? डिस्क्रिमिनेंट अगर -9 है तो -9 का रूट ओवर क्या आएगा? -9 का रूट ओवर हो जाएगा 3i। अच्छा, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर आया, कितना आ गया? 3i आया। ओके, ठीक है, 3i। लेकिन बिट भी में बोल क्या रहा है कि नाइदर रूट इज रियल। अच्छा ठीक है, तो रूट हम लोग का क्या आ जाएगा? अगर ये डिस्क्रिमिनेंट आ गया 3i तो आंसर आ जाएगा 3i प्लस माइनस 3i/20। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आएगा। तो एक बार तो आंसर आ जाएगा 3i - 3i 0 और एक बार आ जाएगा 6i/20।
6i/20 ये तो इमेजिनरी है बट 0 इज रियल। सो इसका मतलब जो बोल रहा है कि रियल नहीं आएगा बिट बे, नाइदर रूट इज रियल, ये गलत बोल रहा है। सो इसीलिए ये वाला आंसर भी हम लोग का फॉल्स हो गया। ना वी चेक फॉर बिट सी, d इक्वल टू -9 + 40k, d इक्वल टू -9 + 40k, ओके, d equal to -9 + 40k. So if d equal to -9 + 40k, then what is the bit C? Bit C is telling for purely imaginary number, कोई हम लोग purely imaginary number ले लेते हैं, both roots are real and irrational, माने बोले कि both roots purely irrational आएगा, और purely real आएगा। तो रियल आएगा, रेशनल आएगा, तो कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा। अब हम चेक कर लेते हैं कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर पुट करके देखते हैं के का वैल्यू। हम लोग सपोज प्योरली कॉम्प्लेक्स सबसे इजी वैल्यू के इक्वल टू आई पुट कर देते हैं। सो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू -9 + 40i। अच्छा, -9 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 16 + 40i - 25। सो वी कैन राइट दिस इज 4 स्क्वायर my plus 2 into a into -5 plus 5i whole square. In this way you can write, so 4 square is 16 and you can say this is 5i, okay, 5i. So this can be written in square form, 4 + 5i whole square. So students, you can see this can be written in completing square form. So 4 + 5i whole square, 4 square is 16 and 5i square is -25. Yes, 5 square is 25, 5 square is -1, and 2 into 4 into 5, that is 40i. Okay students, so 4 + 5 whole square. So in place z, 3i plus minus square root of 4 + 5i whole square. Now in this root format, here denominator is 20, or what, in denominator it is 20, okay, denominator 20 is there. So answer is 3i plus minus 4 + 5i divided by 20. So first we put plus 3i plus 4 plus 5i divided by 20, or 3i minus 4 plus 5i divided by 20 equal to, this is 4 plus 8i by 20, 4 plus 8i by 20, किसी भी हिसाब से यहाँ से आई नहीं जाने वाला। और यहाँ पे देखो 3i minus 5i minus 2i minus 4 minus 2i, ओके, डिवाइडेड बाय 20। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से अगर आंसर आया तो इसको अगर हम लोग ब्रेक और थोड़ा सा कर लेंगे, तो 4 से कट करेंगे तो 1 + 2i डिवाइडेड बाय 5, और -1, नो 4 से कट नहीं कर सकते, -2 -i, 2 ले लिए कॉमन, so this is 10. So you can say here imaginary तो आना ही है। मैंने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया i, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ने प्योरली कॉम्प्लेक्स लिया। प्योरली कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं? a + ib इज कॉल्ड प्योरली कॉम्प्लेक्स। अगर रियल पार्ट जो है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे i को कैसे लिखते हैं? 0 + 1i, मतलब यहाँ पे रियल पार्ट जो है वो 0 है। अगर रियल पार्ट 0 है तो प्योरली कॉम्प्लेक्स को लेकर हम लोगों ने पुट किया, और आंसर तो हम लोग का रियल और इरेशनल आना चाहिए था, जो कि नहीं आया। तो इसका मतलब ये वाला भी फॉल्स हो गया। सो बिट सी आल्सो फॉल्स। सो जबकि ये सिंगल करेक्ट आंसर, तो बिट डी पक्का ट्रू होना चाहिए। और हम लोग करके देख लेते हैं। फॉर रियल नेगेटिव नंबर के, बोथ रूट्स आर प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी होगा, बोले रूट बोले प्योरली इमेजिनरी। अगर कोई नेगेटिव नंबर हम लोग लेंगे तो प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी मतलब रियल नहीं रहेगा। चलो, तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू व्हाट? डिस्क्रिमिनेंट -9 + 40k, ये तो समझ में। तो अगर हम लोग k का वैल्यू क्या लेंगे, कोई नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, सपोज -1 ही ले लेते हैं, तो -9 - 40, तो -49। अब डिस्क्रिमिनेंट का जब रूट करेंगे तो वो हो जाएगा कितना? 7i। तो z का वैल्यू कितना आ जाना चाहिए? 3i ±
3i ही तो है ना, 3i, यस, 3i प्लस माइनस 7 प्लस 1 7i डिवाइडेड बाई 20। अब इसको जब हम लोग ऐड करेंगे, एक बार सॉर्ट आउट करेंगे एक बार, तो 3i प्लस 7i इज 10i डिवाइडेड 20, और 3i माइनस 7i इज माइनस 4i डिवाइडेड 20। सो आंसर क्या आ जाएगा, i बाई 2, और माइनस i बाई 5। तो अब इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्या कह रहा है, देखो हम लोग का तो ये प्योरली इमेजिनरी आया। अब क्वेश्चन कहते हैं फॉर बोथ द रूट्स आर प्योरली इमेजिनरी, और ये यही चीज हम लोग का आया कि रियल पार्ट जो है इसका 0 हो रहा है, और हम लोग का प्योरली इमेजिनरी आया। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आया, i बाई 2 और माइनस i बाई 2। सो बिट डी इज द करेक्ट आंसर। So students, today's last questions. Now I discuss today's last question. See, dividing f of z by z minus I, we obtain the remainder I, and dividing it by z plus I, we get the remainder 1 plus I. Okay, and okay, then remainder upon the division of f of z by z square plus 1 is what? अगर f of z से हम लोग z स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन तो कुछ ना कुछ आ जाएगा, मान लो कि g ऑफ z आ गया क्वेश्चन, कुछ ना कुछ आ जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन जो है कुछ ना कुछ आ जाएगा। सो हियर वी कैन राइट f ऑफ z इक्वल टू z स्क्वायर प्लस 1 इंटू g ऑफ z प्लस ये जो रिमाइंडर है वो ए जेड प्लस बी, मान लो कि दिस इज सपोज ए जेड प्लस बी आ जाएगा, ठीक है, तो ए जेड प्लस बी आ जाएगा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा विद कांस्टेंट, सो ए जेड प्लस बी ऐसे कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो वी आर कंसीडरिंग दिस एफ ऑफ जेड इक्वल टू, उसमें अगर जेड स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ए जेड प्लस बी आ जाएगा, और ए जेड प्लस बी जितना आंसर भी दिख रहा है आप लोगों को दिख ही रहा होगा, ये सब रिमाइंडर का आंसर है, ये सब रिमाइंडर पाने के लिए आंसर दिया गया है। सो ये जो रिमाइंडर है सब इसी फॉर्म है, ए जेड प्लस बी फॉर्म में ही है। सो ए जेड प्लस बी हम लोग लिख देते हैं। तो फर्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 1? जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, अगर इसे जीरो करते हैं तो जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 एंड जेड इक्वल टू प्लस आई और जेड इक्वल टू माइनस आई, मतलब इसे हम लोग लिख सकते हैं कि z प्लस आई इंटू जेड माइनस आई। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसी को जो लिखा इसको ऐसे लिख लेते हैं, इक्वल टू z प्लस आई इंटू जेड माइनस आई इंटू जी ऑफ जेड प्लस ए जेड प्लस बी। इस तरह से ये एफ ऑफ जेड को हम लोगों ने लिख लिया। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इज व्हाट, डिवाइडिंग एफ ऑफ जेड, स्टार्टिंग में क्या गिवन आप देखो, डिवाइडिंग एफ ऑफ जेड बाय जेड माइनस आई, अगर जेड माइनस आई से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वी ऑब्टेन द रिमाइंडर आई। तो जेड माइनस आई से अगर डिवाइड करते हैं तो बाय फैक्टर थ्योरम जेड माइनस आई को इक्वल टू 0 implies that जेड इक्वल टू आई। सो एफ ऑफ जेड मीन्स एफ ऑफ आई अगर हम लोग पुट करते हैं तो आंसर आएगा आई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग जेड के जगह पर आई पुट करते हैं तो आंसर आई आएगा। क्यों हम लोगों ने आई पुट किया, क्योंकि जेड माइनस आई इक्वल टू 0, तो जेड इक्वल टू आई, सो एफ ऑफ आई इक्वल टू रिमाइंडर इज आई। सो बट एफ ऑफ जेड में भी आई पुट करके देख लेते हैं, एफ ऑफ आई इक्वल टू जेड प्लस आई, मतलब आई प्लस आई इंटू आई माइनस आई इंटू जी ऑफ जेड प्लस ए इंटू आई प्लस बी, दैट इज, ये तो 0 हो गया, ए आई प्लस बी। सो एफ ऑफ आई मिल गया ए आई प्लस बी, और ए आई प्लस बी इक्वल टू आई भी लिख सकते हैं, ये दोनों को कंपेयर करने से। फिर क्वेश्चन में और एक चीज दिया हुआ है कि जेड
क्या दिया है क्वेश्चन में कि डिवाइडिंग इट बाय जेड प्लस आई, मतलब जेड इक्वल अगर माइनस आई हम लोग पुट करेंगे तो 1 प्लस आई आएगा। अगर हम लोग माइनस आई पुट करते हैं, फंक्शन में माइनस आई पुट करते हैं तो 1 प्लस आई आएगा। ठीक है, हम लोग जो फंक्शन कंसीडर किए हैं एफ ऑफ जेड, वहां पे भी माइनस आई पुट करके देख लेते हैं। सो वहां पे इफ वी पुट माइनस आई ऑल्सो हियर, हियर वी पुट, देन जेड प्लस आई जो कि जीरो हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा। सो ये वाला पार्ट पूरा ही जीरो हो गया, तो ए इंटू माइनस आई माइनस ए आई प्लस बी, इस तरह से आया। अब इसको और इसको अगर हम कंपेयर कर लेंगे एफ ऑफ माइनस आई और एफ ऑफ माइनस आई को, देन माइनस ए आई प्लस बी इक्वल टू 1 प्लस आई, ये बन गया और एक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो ए और बी का वैल्यू हमें मिल जाएगा। सॉल्व कर लेंगे मतलब क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे ए आई प्लस बी इक्वल टू आई एंड हियर माइनस ए आई प्लस बी इक्वल टू 1 प्लस आई, तो दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। सो ए आई एंड माइनस ए आई कैंसिल, सो बी प्लस बी इक्वल टू 2 b, 2b. So I plus 1 plus I is 1 plus 2i. So 2b equal to 1 plus 2i and b equal to 1 plus 2i by 2. So अब इस b का वैल्यू को इस दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, ai plus b equal to I, ये पहला वाला इक्वेशन हम लोगों ने पुट कर दिया। ai plus b equal to ai plus b equal to I. सो इम्प्लाइज दैट यहाँ पे b के जगह पर पुट कर दो इसे, तो ए आई इक्वल टू आई माइनस बी, और b तो है 1 प्लस 2i बाई 2 इक्वल टू 2i माइनस 1 माइनस 2i डिवाइडेड बाई 2, जस्ट इसको सॉल्व कर दिया, फिर 2i 2i कैंसिल तो हो जाएगा माइनस 1 बाई 2। सो ए आई का वैल्यू हुआ माइनस 1 बाई 2 एंड a का वैल्यू हो जाएगा माइनस 1 बाई 2i। सो a का वैल्यू माइनस 1 बाई 2i एंड 1 बाई आई का वैल्यू माइनस आई। सो माइनस 1 बाई 2 और 1 बाई आई का वैल्यू माइनस आई। ये चीज याद रख लो कि 1 बाई आई का वैल्यू माइनस आई होता है। वो कैसे, ऊपर नीचे आई मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई बाई माइनस 1 तो माइनस आई। सो तो यहाँ पे क्या हुआ, माइनस 1 बाई 2 माइनस आई हुआ। ओके, सो माइनस माइनस प्लस आई बाई 2, तो एक वैल्यू मिला आई बाई 2 और एक वैल्यू मिला 1 प्लस 2i बाई 2। बट हम लोग का आंसर है क्या, हम लोग का तो आंसर होना चाहिए ए जेड प्लस बी, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो लिया है एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1 इंटू जी ऑफ जेड प्लस ए जेड प्लस बी। सो ए जेड प्लस बी शुड बी द आंसर, सो ए जेड प्लस बी शुड बी द आंसर। सो ए के जगह पे क्या पुट करेंगे, आई बाई 2 एंड जेड के जगह पर जेड एंड बी के जगह पे 1 प्लस 2i बाई 2, 1 प्लस 2i बाई 2, तो इस तरह से पुट किया। अब हम लोग चॉइस देख लेंगे, ये जो चार चॉइस में से ये कौन सा चॉइस है, अब इसे देख लेना। आई जेड बाई 2 प्लस 1 प्लस 2i बाई 2, आई जेड बाई 2 प्लस 1 प्लस 2i बाई 2। इसको थोड़ा ध्यान से देखो, आई जेड बाई 2, सॉरी आई जेड, या आई जेड को 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई किया तो आई जेड बाई 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस आई, तो इज इक्वल टू आई जेड बाई 2 प्लस 2i प्लस 1, 2i प्लस 1 बाई 2, ये आंसर है शायद आई जेड बाई 2 प्लस 2i प्लस 1 बाई 2, आई जेड बाई 2 प्लस 2i प्लस 1 बाई 2, यस। So bit B answer is the correct answer. So bit B answer is the correct answer. So students, लास्ट क्लास का वीडियो में जो मैंने पढ़ाया था उसके बेसिस में कुछ क्वेश्चंस मैंने आज किया। 8